So have you completed sixth E exercise? Yes, sir. Okay. Anybody is having any problem in any of the question? Any problem is there in any question, or shall we start next exercise? Better reply fast. Sir, you can start. Okay. All of you open sixth F exercise. Board is visible? बोर्ड पे क्लियर आ रही है वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So sixth F exercise, question number first. All of you see question number first. First question is, 5 years ago, A age was 4 times the age of B. क्या बोला इन्होंने? 5 years ago. 5 years ago means 5 साल पहले. A age was 4 times the age of B. Find क्या करना है आपको? At last in the question he asked, find their present age. Present age आपको find करनी है किसकी? A की और B की. So first of all you have to assume let present age of A is X. We will assume A present age is X and present age of B is Y. A की present age X मान लेते हैं, B की present age Y मान लेते हैं. In the first sentence he said 5 years ago. तो आप भी एक heading डालेंगे. You have to put one heading 5 years ago. So we have to put one heading 5 years ago. 5 years ago means 5 साल पीछे की बात कर रहा है. तो 5 साल पहले जो है A और B की एज क्या होगी? कम होगी. प्रेजेंट एज ऑफ A इज X. तो 5 साल पहले जो A की एज होगी, एज ऑफ A, अभी A कितने ईयर्स का है? X ईयर्स का है. यहाँ पर आपको ईयर्स लिखना है, X ईयर्स एंड Y years. So present age of A is X year. तो 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा. तो 5 साल के लिए Sir, your voice is not coming. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. So heading is there 5 years ago. Age of B. एज ऑफ बी में आपको क्या करना है? बी की प्रेजेंट एज क्या है? वाई है. वाई है प्रेजेंट एज. हम 5 साल पहले का लिख रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर देंगे? वाई माइनस 5 ईयर्स. So we have to use the statement which is given in the question. Question में बोला है 5 साल पहले A age was 4 times the age of B. आपको यहाँ पे लिखना है according to question age of A was के लिए क्या लगाएंगे? इक्वल टू साइन 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई एज ऑफ B. Now we have to put the value. 5 साल डालिए बिफोर 5 years minus 4 B is 5 minus 5. Now we have to open the left hand side. We have to write as it is 4 into y 4y minus 4 5 is 20. Now x and y variables so x
minus 4y. And if I have to on right hand side, so this will become minus 20 plus 5. So x minus 4y is equal to minus 15. This is the equation number 1. Till here, anybody is having any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Now, next sentence क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 year hence. Hence बोला है. इसमें बोला था 5 years ago. Ago means पीछे. अब वो कह रहा है 5 year hence. Hence means after, बाद में. तो आप एक हेडिंग डालेंगे after 5 years. After 5 years. 5 साल बाद. तो आफ्टर 5 years दोनों क्या हो जाएंगे? 5 साल बड़े हो जाएंगे. प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है? एक्स है. अभी ए की एज एक्स है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? एज ऑफ ए एक्स प्लस 5 years. नाउ एज ऑफ बी, बी की एज 5 साल बाद. अभी कितने का है? बी प्रेजेंट एज बी की है y. प्रेजेंट मीन्स अभी, और 5 साल बाद और 5 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो y प्लस 5 years. So we got the age of A as well as of B. कब? After 5 years की एज. तो इन्होंने अब स्टेटमेंट क्या बोला है क्वेश्चन में? आफ्टर 5 years A age will be twice the age of B. Age of A will be के लिए क्या लगाना है आपको? इक्वल टू ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई. एज ऑफ बी बोला है, तो आगे लिख देंगे आप एज ऑफ बी. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज. एज ऑफ ए इज x प्लस 5. 2 मल्टीप्लाई एज ऑफ बी इज y प्लस 5. नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओपन करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 2 into y 2y, 2 into 5 10. Now y variable we have to bring on left hand. तो ये हो जाएगा x minus 2y is equal to 10 plus 5 will come on right hand minus 5. So x minus 2y is equal to 5. This is your equation number 2. Till here anybody is having any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Now we are having two equations. दोनों equations को आपको elimination by equating coefficient method से solve करना है. Then after solving these two equation, you will get the value of x and y. और find क्या करना था क्वेश्चन में? Present age find करनी थी. तो last में आपको क्या लिखना है? Present age of A is x and x answer you have to write. Present age of B is y years. Y में y की value रख देंगे आप. So is this question clear? Yes, sir. Okay, take the screenshot. All of you take the screenshot. Over. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now go to question number 4. Fourth question रहेगी. The age of man is twice the sum of age of his two children. यहाँ पे दो चीज है आपकी. एक तो है एज ऑफ मैन और दूसरी चीज जो आपके क्वेश्चन में है वो है सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रंस. तो आपको यहाँ पर दो चीज दी हुई है. एक तो एज ऑफ मैन दी है और एक दी है सम ऑफ एज ऑफ द
2 चिल्ड्रन, तो आपको दोनों को मानना है। आप क्या मानेंगे? लेट एज ऑफ मैन इज एक्स प्लस, प्रेजेंट एज है ये कौन सी एज है? प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन आपने मान ली है एक्स ईयर। जो क्वेश्चन में थी वो थी सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस, तो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, वो मान लेते हैं आप y। तो दोनों बच्चों की एज का जो टोटल है वो y है, और प्रेजेंट एज जो मैन की है वो क्या है? x। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था एज ऑफ मैन इज ट्वाइस, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ मैन इज के लिए आपको लगाना है इक्वल टू साइन, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई, ट्वाइस के बाद क्या बोला इन्होंने? सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। Now you have to put the values. Age of man x है, 2 into sum of age of 2 children आपने मानी थी y, that means x is equal to 2y. Now bring this 2y on left hand, तो ये हो जाएगा x minus 2y is equal to 0. Equation number 1. Till here anybody is having any doubt? No, sir. ओके, नाउ अब आगे लिखा है इन्होंने आफ्टर 20 इयर्स, तो आपको भी एक हेडिंग डालनी है, आफ्टर 20 साल बाद। तो 20 साल बाद क्या होगा? सब लोग जितने भी हैं वो सब 20-20 साल क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। 3 लोग हैं, 2 तो चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं और एक मैन है, उनके फादर। तो एज ऑफ मैन क्या हो जाएगी? 20 साल बाद, 20 साल बड़े हो जाएंगे वो, तो एज ऑफ मैन इज इक्वल टू, मैन की एज x थी, इसमें 20 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी एज ऑफ मैन 20 साल बाद। अब आप लिखेंगे सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, अभी प्रेजेंट एज में दोनों बच्चों की एजेस का सम जो है वो y है। कितने बच्चे हैं? ये 2 बच्चे हैं। तो 20 साल बाद जब बात करेंगे तो दोनों बच्चों की उम्र क्या होगी? 20-20 साल बड़ी हो जाएगी। अभी दोनों का सम कितना है? y है। लेकिन हम जो लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 20 साल बाद की बात, तो फर्स्ट चिल्ड्रन में भी 20 साल ऐड होंगे और सेकंड चिल्ड्रन की एज में भी क्या होंगे? 20 साल ऐड होंगे। तो अभी y के हैं, तो अगली बार जो होंगे वो उनका सम जो बैठेगा वो कितना बैठेगा? y प्लस 40 ईयर्स बैठेगा। 40 क्यों बैठेगा? 20 आपको लेना है फर्स्ट चिल्ड्रन का, फर्स्ट चाइल्ड का, और 20 आपको लेना है सेकंड चाइल्ड का। इज दिस क्लियर? ये क्लियर आया? 20 क्यों लिया 2 बार? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो सम लिख रहे हैं, सम मतलब टोटल, दोनों बच्चों की एज टोटल जो y था, तो y तो पहले था, अब 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो दोनों बच्चे 20-20 साल बड़े हो जाएंगे। तो 20 साल फर्स्ट बच्चा बड़ा हो जाएगा और 20 साल हो जाएगा सेकंड बच्चा बड़ा, यानी टोटल कितने ऐड होंगे? 40 ऐड होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार 20 लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करके लिख लो आप, ये आ जाएगा y प्लस 40। क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोला इन्होंने? आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू, हिज एज, ये हिज कौन है? मैन, मैन एज इक्वल, किसके इक्वल बोला इन्होंने? सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। नाउ वी हैव टू वैल्यूज, मैन एज अभी x प्लस 20, सम ऑफ एजेस,
सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, इसमें आपने अभी निकाला है y plus 40. So here we have to write y plus 40. Now x and y variable we have to take on left hand और constant term आपको लेना है right hand. तो ये बन जाएगा x minus y, ये इधर आ जाएगा 40 minus 20. So x minus y is equal to 20. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. ये समझ आ गई इक्वेशन सबको? जल्दी बताएं. Yes, sir. Okay. Now you are having two. This is equation number 1. This is your equation number 2. दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, then you will get the answer of x and y. x और y के आंसर आ जाएंगे. आपको पूछा गया है इन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन पूछी है. तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन आपने क्या ली थी? x ईयर्स. तो इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है x की. ओके. All of you take the screenshot. And anybody want to ask any step, then you can ask. Excuse me, sir. Yes. सर लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था मुझे. E एक्सरसाइज का यस 6th सर. E एक्सरसाइज. यस सर. ओके ओके, अभी बता देंगे वो भी. Have you taken the screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now come to question number 5. Question number 5th. The annual income of A and B are in the ratio 3:4. क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला है एनुअल इनकम A की और B की रेशो में है 3:4, और आगे जाके बोल रहा है एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो. पहले इनकम दी है और बाद में एक्सपेंडिचर दिया है. एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा. तो आपको इनकम वाले रेशो में तो x मानना है और एक्सपेंडिचर वाले रेशो में क्या मानना है? y. दो चीज है, एक तो इनकम है और दूसरी चीज है एक्सपेंडिचर. तो आपको क्या करना है? पहले आप रेशो लिखेंगे एनुअल इनकम ऑफ ए रेशो एनुअल इनकम ऑफ बी. दोनों का रेशो कितना दिया है? 3:4. अब आप क्या करेंगे? लेट करेंगे. लेट एनुअल इनकम ऑफ ए जो है वो हो जाएगी 3x. एनुअल इनकम ऑफ बी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4x. तो रेशो वाले क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं. तो जब भी रेशियो में होता है तो आप x एज्यूम कर लेते हैं. फर्स्ट वाला 4x. तो ये तो एनुअल इनकम का था तो इसलिए इसमें x लिया. जब एक्सपेंडिचर आएगा एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए रेशियो एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ बी. दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:7. तो आप क्या करेंगे? इसमें y एज्यूम कर लेंगे. लेट एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है वो 5x y मानना है 5y और b का हो जाएगा 7y. टिल हियर इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो इनकम
मान लिए और एक्सपेंडिचर में आपने y मान लिए। अब क्वेश्चन में बोला है ईच पर्सन सेव्स 5000 रुपीज। इन्होंने बोला है दोनों पर्सन सेव कर रहे हैं 5000। दोनों कौन? ए बी और बी। तो आप लिखेंगे ए सेव्स, ए ने कितने सेव करे हैं? 5000। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बट अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होंगे सेव? जो उसने कमाए थे इनकम, उसमें से आप हटा देंगे इसको, खर्चे को, तो वो क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। सेविंग कैसे निकालते हैं? सेविंग हम कैसे निकालते हैं? अगर आपने 1000 रुपीज अर्न किए वन डे में और आपने 200 स्पेंड किए, तो सेव कितने करें? माइनस करके निकालते हैं। 800 रुपीज सेव करें, तो सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम जो कमाए माइनस एक्सपेंडिचर जो खर्च करें। तो ए की सेविंग 5000 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू अस फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब आप इनकम ऑफ ए ले लें। इनकम ऑफ ए है 3x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए 5y इज इक्वल टू 5000। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम वे बी के लिए भी करना है आपको। क्वेश्चन में बोला था बोथ पर्सन सेव्स 5000, दोनों ने सेविंग करी है 5000। Sir, your video तो is not clear. अच्छा, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बाकियों को भी नहीं आ रही? Sir, it is clear. क्लियर। आ रही है क्लियर? No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. हाँ बेटे, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी आपके फोन में, अभी हो जाएगा सही, कोई बात नहीं। तो ए और बी क्वेश्चन में बोला है बोथ पर्सन ने सेव करे थे 5000। तो ए ने सेव करे हैं 5000, वो तो हम ले चुके हैं। अब आपकी बारी है बी की। बी ने कितने सेव करे हैं? बी ने भी 5000 रुपीज सेव करे हैं। तो आप लिखेंगे बी सेव्स रुपीज 5000। ये तो क्वेश्चन में कहा है कि बी ने सेव करे हैं 5000। हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला वही है, इनकम ऑफ बी लेंगे माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी लेंगे। तो एनुअल इनकम ऑफ बी है 4x माइनस खर्चा कितना करा था बी ने? एक्सपेंडिचर ऑफ बी 7y इज इक्वल टू 5000। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिलेगा x का और y का। आफ्टर दैट क्वेश्चन में इन्होंने फाइंड करने के लिए क्या कहा है? इन्होंने कहा है फाइंड देयर एनुअल इनकम। आपको इनकम फाइंड करनी है। इनकम यहाँ है दोनों की। इनकम ऑफ ए 3x, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। इनकम ऑफ बी क्या है? 4x, इसमें भी आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। देन यू विल गेट द आंसर। आ गया सबको समझ? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ, यस। सर अगर मैं x निकाल दूं पहले ही इन टर्म्स ऑफ y में, तो y निकालने की जरूरत है क्योंकि इनकम में तो सिर्फ x लिया है। इसमें यहाँ निकाल सकते हो आप 3 एक्सरसाइज। इन फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। सेकंड में फर्स्ट वाली से x का आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ y और इसमें पुट कर दो, वो भी कर सकते हो। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी लगा सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो। कोई सा भी मेथड लगा लो, तीनों में मेथड करेक्ट है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ओके, ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट। ओवर।
Yes, sir. Okay. Now come to previous exercise. 6th E, question number 18. आ जाओ जल्दी. All of you see question number 18. Previous exercise पे आ जाए. सर स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है सर, वीडियो बहुत ब्लर है। सब बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही है? सर नहीं आ रही। सर नहीं आ रही है सर। सर नहीं आ रही। किस किस को आ रही है वो बताएं नाम अपने. सर झूठ ये आपके बोलते हैं। सर आ रही है। और बाकी बच्चों को जिनको क्लियर आ रही है वो अपने हैंड रेस करें, जिनको वीडियो क्लियर आ रही है. बेटा बहुत सारे बच्चों को क्लियर आ रही है, वो नेटवर्क इशू है, हो जाएगा सही. अब इसमें सर क्या करेंगे बताओ, सर तो कुछ नहीं कर सकते. रुको एक बार दोबारा सर्च कर लेते हैं इंटरनेट. अब कुछ फर्क पड़ा? समरा अब क्लियर आई कुछ? यस सर। चलो ठीक है फिर. नाउ कम टू 6th E एक्सरसाइज 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन. ए 2-digit नंबर इज ऑब्टेन. 2-digit नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस एक्स, फिर आप मानेंगे डिजिट एट यूनिट प्लेस वाई. जब डिजिट एज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर फॉर्मूला है 10 into 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस. तो 10 into x प्लस y. तो 10 into x प्लस y करेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस y. तो ये तो आपका ओरिजिनल नंबर आ गया. अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, ए 2-digit नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8. क्या बोला इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2-digit नंबर ऑब्टेन्ड का मतलब तो आप इक्वल ले लें. 2-digit नंबर कब आएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स की 8 से. 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, सम ऑफ डिजिट्स की. तो आपने 8 से मल्टीप्लाई करी सम ऑफ डिजिट्स. एक तो है 10 प्लेस डिजिट x और एक है यूनिट प्लेस डिजिट y, यानी कि 8x प्लस 8y. तो वो कह रहा है जब हमने 8 से मल्टीप्लाई करी है सम ऑफ डिजिट की, तो आपका आंसर जो आया है वो आंसर क्या आया है, 2-digit का नंबर आया है. तो इधर आपको 2-digit का नंबर लेके चलना है इक्वल में. 2-digit नंबर क्या है, 10x प्लस y. यहां तक क्लियर हुआ कि कोई डाउट है किसी को, क्या कराए ये समझ आ गया सबको? Yes, sir. ओम. यस सर आ गया. हाँ, तो 8 की मल्टीप्लाई सम ऑफ डिजिट से करी तो आपका 2-digit नंबर आया. तो एक तरफ
एक हैंड पे आपको क्या लेना है 8 इंटू सम ऑफ डिजिट लेनी है और अदर हैंड पे क्या लेना है 2 डिजिट का नंबर लेना है। नाउ x और y एक तरफ ही कर लें आप। 10x माइनस 8x प्लस y ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 8y इज इक्वल टू में 0। 2x माइनस x माइनस 7y इज इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। ऑल्सो इट इज ऑब्टेन्ड, क्या कह रहा है, यही 2 डिजिट का नंबर अभी हमने 8 की मल्टीप्लाई सम ऑफ डिजिट से करी थी तो आया था। अब दोबारा कह रहा है वो यही 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट नंबर लाने के लिए इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा। इस बार वो कह रहा है मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 14। मल्टीप्लाई करना है किससे, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 14 से। एंड आफ्टर दैट ही सेड हेडिंग 2 और इसमें 2 भी ऐड करना है तो आगे लिखेंगे प्लस 2। तो 2 डिजिट नंबर क्या था 10x प्लस 5 इक्वल 14 इंटू डिफरेंस। अब डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस क्या होती है टेंस प्लेस डिजिट माइनस यूनिट प्लेस डिजिट। अब कौन सी बड़ी है इसमें, वी डोंट नो विच डिजिट इज ग्रेटर, टेंस प्लेस वाली x बड़ी है या यूनिट प्लेस वाली y बड़ी है, तो हमें अभी मालूम नहीं है। तो आपको इसमें दोनों केस लेने पड़ेंगे। दोनों केस कैसे लेने पड़ेंगे, जब आप डिफरेंस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन y। कल एक क्वेश्चन बताया था ऐसा, याद है सबको क्या कराया था क्वेश्चन। यस सर। 17th क्वेश्चन में आपको बताया था डिफरेंस दिया था तो डिफरेंस का मतलब होता है लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो इसमें कौन सी लार्जर है स्मॉलर है हमें नहीं पता, तो आपको दोनों केस लेके करने पड़ेंगे। जब x बड़ा होगा y से, तो x बड़ा होगा y से तो डिफरेंस में माइनस y और आगे आ जाएगा प्लस 2। यहाँ से एक इक्वेशन तैयार करेंगे 14 इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे तो 14x माइनस 14y और आगे क्या लिखा है प्लस 2 भी लिखा हुआ है। x और y एक हैंड पे ले आएंगे 10x और ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 4x प्लस का y और ये माइनस का 14y उधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस 15y इज इक्वल टू 2। इज दिस इक्वेशन क्लियर, जिसको डाउट है जल्दी पूछो। सबको क्लियर हो गई है इक्वेशन। Yes, sir. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। केस और लेना है जिसमें हम x बड़ा नहीं लेंगे, उसमें हम y बड़ा लेंगे व्हेन y इज ग्रेटर देन x। तो ये डिफरेंस जो था ये डिफरेंस अब बदल जाएगा। अर्लियर हमने लिया था x माइनस वाई, नाउ वी विल टेक y माइनस x। तो 2 डिजिट नंबर में आप तो वही लेंगे 10x प्लस y इज इक्वल टू 14 ब्रैकेट 14 के बाद क्या था डिफरेंस, डिफरेंस में आपको x माइनस वाई नहीं लेना y माइनस x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे 10x प्लस y 14y माइनस 14x प्लस 2 और यहां से एक थर्ड इक्वेशन तैयार कर लेंगे। फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या करेंगे आप फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व करके x और y का आंसर फाइंड करेंगे। उसी तरह फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे और इसमें भी आप क्या करेंगे x का और y का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला है फाइंड क्या करो नंबर। जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे x और y आंसर मिलेगा, उससे आप नंबर में पुट कर देना तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। जब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे तो उसमें भी x y का आंसर आएगा, दैट x y वैल्यू यू हैव टू पुट इन हियर दिस नंबर, तो यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो 2 आंसर आएंगे आपके। क्लियर हो गया क्वेश्चन।
यस सर। जल्दी पूछें, बताओ। यस सर। बेटा कंफ्यूजन है तो पूछ लो जहाँ कंफ्यूजन है। आप इसे सॉल्व करके देखना, आंसर नहीं आएगा तो दोबारा बता देंगे, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर। Okay, now I will take your attendance. All of you be quiet. Okay, so you have to complete up to question number 5th. F exercise के question number 5th तक आपको complete करना है. Rest of the questions we will do tomorrow. Okay? Okay, sir. Okay, sir. यस सर। ओके सर। Now you can leave the class. ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay. Bye, sir.